Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine. Dear student, today we are going to revise the first lecture of Social Studies of Grade 3. Today we are going to revise the unit number 1, 5, 6 and 7. So the unit number 1 is the solar system. So let's open your textbook. Dear student, lesson number 1, the solar system. First one is what is solar system? Solar system क्या होता है? Students, there are 8 planets in our solar system. हमारे solar system में 8 planets होते हैं that moves around the sun, जो कि किसके इर्द गिर्द मूव करते हैं? सन के इर्द गिर्द मूव करते हैं. And the name of planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Dear student, it's a picture of a solar system, and the solar system has 8 planets, and the name of planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now, dear student, the next one thing is the sun. What is sun? Student, the sun is a bright star and it is made up of very hot gases. Sun जो है वो एक bright star है जो कि hot gases से मिलके बना है. And the light of sun is very strong. इसकी जो light है वो बहुत ज़्यादा strong होती है. And the sunlight is important for the animals, plant and all the living things. And dear student, जो sunlight है वो इंसानों, जानवरों के लिए और जितने भी living thing है उनके लिए बहुत ज़्यादा important है. Now the next one concept is the concept of earth, and there are another important concept in the concept of earth. It's a revolution and the rotation. So first one, what is earth? We live on the planet earth. हम जिस planet पे रहते हैं उसका क्या नाम है? Earth. And which is the third planet from the sun, जो कि कितने नंबर पे? Third one planet है. So here the earth shows the 2 type of movement. Earth कितनी type of movement show करता है? 2 type of movement. The first one is revolution and the second one is rotation. अब revolution and rotation में फर्क क्या है? The earth move around the sun. जब earth sun के move around करता है, then this rotation is called the revolution. तो इस movement को हम क्या कहते हैं? Revolution. Now dear students, the next one thing is the earth takes 1 year to go around the sun. अर्थ को 1 year लगता है अपना जो सर्कल है, जो अपना साइकिल सन के अराउंड जो है वो कंप्लीट करने के लिए. सो द नेक्स्ट वन थिंग इज रोटेशन. रोटेशन क्या है? व्हेन अर्थ मूव्स अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. जब अर्थ अपने ही एक्सिस के अराउंड मूव करता है तो उसको रोटेशन कहते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट थिंग इज मून. अब मून क्या है? मून, मोस्ट ऑफ द प्लेनेट हैव मून सर्कलिंग अराउंड देम, एंड आवर प्लेनेट अर्थ हैज ओनली 1 मून. हमारा जो प्लेनेट है अर्थ, उस पे कितने मून है? सिर्फ 1 मून है. मीन्स चांद हमारे कितने हैं? सिर्फ 1. एंड द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. एंड मून जो है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? अर्थ के. एंड इट टेक द 29.5 days टू मेक 1 full revolution around the earth. So this period is called a lunar or a Islamic month. जो मून है वो अपना जो साइकिल है, अपना जो अर्थ के अराउंड वो मूव करता है, वो कितना टाइम उसके लिए लेता है? 29.5 days. अब वो जब वो अपना सर्कल कंप्लीट करता है, इट्स मीन ऑलमोस्ट 1 month. तो हम उसको क्या कहते हैं? लूनर और इस्लामिक मंथ. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स ओपन योर वर्कबुक. Workbook page number 4. Dear student, the first one question is what is mean by the revolution of earth? Revolution of earth से क्या मुराद है? The movement of earth around the sun is called the revolution of earth. जो अर्थ की मूवमेंट है अराउंड सन, हम इसे क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ. नेक्स्ट वन इज रोटेशन ऑफ अर्थ. रोटेशन ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ऑन एक्सिस. जो अर्थ की मूवमेंट है उसके अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द, उसे हम रोटेशन ऑफ अर्थ कहते हैं. नाउ डिस्क्राइब द सन. सन क्या है? सूरज क्या है? द सन इज अ ब्राइट स्टार. सन एक ब्राइट स्टार है, मेड अप ऑफ वेरी हॉट गैसेस एंड इट गिव द हीट एंड लाइट. और जो कि क्या प्रोवाइड करता है? हीट एंड लाइट. नेक्स्ट वन इज मून. मून क्या है? द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. मून किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है? अराउंड द अर्थ. एंड इट हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन. और इसकी अपनी कोई भी लाइट नहीं है. एंड इट हैज नो एयर एंड वाटर. और मून पे कोई भी एयर और वाटर भी
नहीं है। नाउ डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन, पेज नंबर 5. Here we have another question. Understand the question and answer accordingly. It's a question number 2. Look at the sequence of the planet and tell which planet is the closest in size to the Earth. सीक्वेंस देखें प्लैनेट्स के और देखिए कि कौन सा वाला प्लैनेट जो है वो साइज में अर्थ से ज्यादा क्लोजेस्ट है. सो इट्स अ वीनस. वीनस सीम टू बी क्लोजेस्ट इन साइज टू द अर्थ. Dear student, the next one lesson is lesson number 5. It's a weather and seasons. Now dear students, there are different types of seasons. The first one thing is what is weather. कि weather क्या होता है. The earth is surrounded by a layer of air. जो हमारी जो अर्थ है वो एक एयर की लेयर से जो है वो हमारे अर्थ के इर्द गिर्द जो है हवा की एक लेयर है जो क्या कहलाती है, एटमॉस्फेयर. नाउ डियर स्टूडेंट, समटाइम दिस लेयर ऑफ एयर इज बिकम वेरी हॉट एंड समटाइम इट बिकम वेरी कोल्ड. समटाइम क्या होता है कि ये जो ये लेयर है वो बहुत ज्यादा हॉट हो जाती है एंड समटाइम बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाती है. एंड नाउ दिस चेंज, जब ये चेंज आता है तो उसको क्या कहते हैं, इट्स बिकम अ वेदर. तो ये क्या कहलाते हैं, वेदर. स्टूडेंट्स, सम टाइम ये होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है, सम टाइम बहुत ज्यादा हॉट हो जाता है, सम टाइम जो है वो मॉडरेट कंडीशन में रहता है, ना बहुत ज्यादा ठंडा होता है ना बहुत ज्यादा गर्म होता है. जब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक जैसा जो है वो वेदर रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, सीजन्स कहते हैं. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीजन है. वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सीजन. द फर्स्ट वन इज स्प्रिंग. स्प्रिंग जिसे हम मौसम बहार कहते हैं. नेक्स्ट वन इज विंटर. विंटर जिसे हम मौसम सरमा कहते हैं. समर मौसम गर्मा एंड द ऑटम मौसम खजा. वी हैव 4 सीजन, स्प्रिंग, विंटर, समर एंड ऑटम, और स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर. Now dear students, let's open your textbook. Students, it's workbook page number 25. The first one is it's a season. Seasons क्या होते हैं? When weather remain the same for a long period of time, we call it season. जब weather long period of time के लिए, ज्यादा टाइम के लिए एक जैसा रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, season. And we have 4 seasons. The first one is as it's a summer, then autumn, winter and spring. Now dear student, first one is the weather. The season is the spring. The first one season is spring. अब spring की क्या characteristic है, spring के जो season है उसमें कौन कौन सी changes होती है और जो season है वो कैसा होता है. Student, spring is a time when the weather become the warmer. वो टाइम होता है जब जो weather है वो बहुत ज्यादा वार्म होना शुरू हो जाता है. एंड कौन कौन से मंथ्स में जो है वो स्प्रिंग होता है, मार्च एंड अप्रैल आर दी मंथ ऑफ स्प्रिंग. मार्च एंड अप्रैल के जो मंथ्स है उसमें कौन सा वाला सीजन होता है, स्प्रिंग. एंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीजन स्प्रिंग इज द न्यू लीव्स अपीयर. नए जो लीव्स हैं, जो पत्ते हैं वो दरख्तों पे क्या हो जाते हैं, अपीयर होना शुरू हो जाते हैं. एंड द फ्लावर्स ब्लूम इन द डिफरेंट कलर. और जो नए फ्लावर्स है वो खिलना शुरू हो जाते हैं. The next thing is the day and night become equal. और जो डे और नाइट है उनका ड्यूरेशन क्या हो जाता है, वो इक्वल हो जाता है. दिन और रात जो है वो बराबर के हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज समर. समर कौन सा होता है, जिसे हम कहते हैं मौसम गर्मा. इट इज द हॉटेस्ट सीजन. ये क्या है, हॉटेस्ट सीजन है, बहुत ज्यादा गर्म सीजन होता है. द नेक्स्ट थिंग इज इन पाकिस्तान द मंथ ऑफ मई, जून एंड द जुलाई आर वेरी हॉट. जो मंथ होते हैं मई, जून एंड जुलाई के वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा हॉट होते हैं. इसीलिए कहते हैं हम ये समर का सीजन है. एंड द डेज ऑफ समर आर लॉन्गर देन द नाइट. और जो डेज होते हैं समर के वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं. किससे, जो नाइट्स होती है रातें उनसे. द नेक्स्ट वन सीजन इज द ऑटम, मौसम खजा. ऑटम इज द सीजन व्हेन द लीव्स टर्न ब्राउन. अब ऑटम में क्या होता है, मौसम खजा में जो लीव्स होते हैं, पत्ते, वो ब्राउन होने शुरू हो जाते हैं और स्टार्ट टू फॉल, और क्या झड़ना शुरू हो जाते हैं.
दिस सीजन इज वेरी शॉर्ट, ये सीजन क्या होता है, बहुत ज्यादा छोटा होता है, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होता है. इट इज नाइदर हॉट और नॉर कोल्ड, ना ये ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ये ठंडा होता है. एंड डियर स्टूडेंट, इन पाकिस्तान दिस सीजन कम इन दी मंथ ऑफ अक्टूबर टू द मिडल ऑफ नवंबर. और ये सीजन कब से होता है, मंथ ऑफ अक्टूबर से लेकर जो नवंबर का मिड तक है. एंड इन दिस सीजन द नाइट बिगेन टू गेट लॉन्ग, और इस जब ये सीजन स्टार्ट होता है जो रात होती है वो क्या होना शुरू हो जाती है, लॉन्गर होना शुरू हो जाती है, लंबी होना शुरू हो जाती है. एंड द लास्ट वन सीजन इज द सीजन ऑफ विंटर, मौसम सरमा, जिसे हम सर्दियां कहते हैं. मौसम सरमा में क्या होता है, दिस विंटर इज कोल्डेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, ये बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है. पाकिस्तान में दिसंबर, जनवरी एंड द फरवरी आर वेरी कोल्ड. जो दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी के मंथ्स होते हैं ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कोल्ड होते हैं. एंड द डेज बिकम शॉर्टर एंड द नाइट बिकम लॉन्गर. और क्या होता है, जो डेज होते हैं वो छोटे होना शुरू हो जाते हैं, दिन छोटे, और जो रातें होती हैं वो लंबी होना शुरू हो जाती हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, दीज आर द 4 सीजन. द नेक्स्ट वन थिंग इज द क्लाइमेट. अब क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज अ कॉमन और द एवरेज कंडीशन, वेदर कंडीशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. किसी भी जगह की जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. स्टूडेंट, जो क्लाइमेट होता है वो डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट से जो है वो क्या किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है. जो हमारा जो वेदर एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट चेंजेस आ रही होती है, और उन चेंजेस को हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं, मेजर करते हैं. मीन्स के जैसे कि हवा चल रही है तो जो हवा है, विंड है, उसको भी किसी न किसी चीज से मेजर किया जाता है. इसी तरह जो बारिश होती है, जब बहुत ज्यादा कोल्ड हो जाता है जो मौसम है, तो जो बारिश हो रही होती है उसकी अमाउंट को भी किसी न किसी चीज से मेजर किया जाता है. इसी तरह जो एयर है, हवा है, उसके प्रेशर को भी हम किसी न किसी चीज से मेजर करते हैं. सो द फर्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट इज द थर्मामीटर. थर्मामीटर किस लिए होता है, इट मेजर द एयर प्रेशर. ये किसको मेजर करता है, जो हवा का प्रेशर है उसको मेजर करता है. एंड इट कैन टेल, ये हमें क्या बताता है, हाउ वार्मर आर कोल्ड द कंडीशन आर. और ये हमें ये बताता है कि कितनी ज्यादा जो कंडीशन है वो क्या है, गर्म है या फिर वो ठंडी है. द नेक्स्ट वन इंस्ट्रूमेंट इज द बैरोमीटर. अब बैरोमीटर से हम क्या हेल्प लेते हैं, इट मेजर द एयर प्रेशर. अब ये क्या करता है, ये एयर के प्रेशर को मेजर करता है कि एयर का प्रेशर कितना हाई है और कितना लो है. हाई एयर प्रेशर मीन्स कि अगर ज्यादा हाई होगा एयर प्रेशर तो हम क्या कहेंगे, इट्स अ गुड वेदर कंडीशन, कि वेदर क्या है वो गुड है. एंड इफ द एयर प्रेशर इज लो, अगर वो क्या होगा, वो लो होगा, तो इट्स मीन इट्स अ बैड वेदर कंडीशन. द नेक्स्ट वन इज रेन गेज. अब रेन गेज किस लिए यूज होता है, रेन गेज मेजर द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. अब रेन गेज किस लिए यूज होता है, वो क्या मेजर करता है कि कितनी बारिश एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में किसी भी जगह पे बरस रही है. जो बारिश होती है किसी भी जगह पे किसी स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए, उसको जो मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, रेन गेज से किया जाता है कि कितनी बारिश हुई है. एंड द लास्ट वन इंस्ट्रूमेंट इज द विंड वेन. अब विंड वेन का क्या काम है, विंड वेन इज इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइन द डायरेक्शन फ्रॉम व्हिच द विंड इज ब्लोइंग. विंड वेन हमें बताती है कि जो डायरेक्शन है विंड की, हवा की जो डायरेक्शन है, जो विंड हो रही है उसकी डायरेक्शन कौन सी है, वो किस सिम से आ रही है. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स ओपन योर वर्कबुक. इट्स पेज नंबर 37. द फर्स्ट वन क्वेश्चन इज व्हाट इज सीजन. एज डियर स्टूडेंट, जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि सीजन क्या होता है, सीजन द वेदर रिमेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, वी कॉल इट सीजन. द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. हम किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, वी कैन फाइंड द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस बाय मेजरिंग द डेली टेम्परेचर. किसी भी जगह का जो डेली टेम्परेचर है हम वो मेजर करके हम क्या करते हैं, उस जगह का क्लाइमेट फाइंड आउट करते हैं. नाउ डियर स्टूडेंट, व्हाट इज रेन गेज. अब रेन गेज क्या है, अभी हमने पढ़ा रेन गेज क्या होता है, इट मेजर द अमाउंट ऑफ रेन दैट हैज फॉलन ओवर अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड. नाउ हियर द पिक्चर ऑफ इंस्ट्रूमेंट. द फर्स्ट वन पिक्चर, इट्स अ पिक्चर ऑफ बैरोमीटर. सो you have to write the barometer. Next one is wind vane and the last one is the rain gauge. Now dear student, the question is how climate is different from the weather. जो climate है वो weather से कैसे different है. Climate is the average weather condition of a particular place.
over a longer period of time, while the weather is the day-to-day change in the atmosphere. Now, dear student, the next one chapter is chapter number 6. Chapter number 6 is the calendar. Calendar. Dear student, calendar क्या होता है? Calendar shows the time of the days. Calendar हमें क्या शो करता है? Days शो करता है. It shows the day, week and the month of the year. Month शो करता है and the week. मीन्स हमें कैलेंडर किस चीजों के बारे में बताता है कि कौन सा दिन है, कौन सा महीना चल रहा है और कौन सा ईयर है. जस्ट लाइक टुडे द डेट इज द 3rd December 2020. लाइक द डे इज टुडे, द डे इज थर्सडे and the date is 3rd December and the month is December and the year is 2020. मीन्स कौन सा वाला ईयर चल रहा है 2020 और कौन सा मंथ है दिसंबर का महीना और डेट क्या है 3rd December एंड हमारे पास आज कौन सा वाला डे है, इट्स अ थर्सडे. नाउ डियर स्टूडेंट, देयर आर टू टाइप ऑफ कैलेंडर. टू काइंड्स होती है कैलेंडर की. फर्स्ट वन इज ग्रिगोरियन एंड द सेकंड वन इज इस्लामिक. अब हम इनका डिफरेंस देखेंगे कि ग्रिगोरियन कैलेंडर एंड इस्लामिक कैलेंडर में क्या फर्क है. स्टूडेंट्स, ग्रिगोरियन कैलेंडर को हम वेस्टर्न कैलेंडर कहते हैं एंड द इस्लामिक कैलेंडर इज आल्सो कॉल्ड द लूनर कैलेंडर. द नेक्स्ट वन थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेन डिफरेंस इन दोनों में क्या है. ग्रिगोरियन कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पे बेस करता है, मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ की मूवमेंट पे जो अराउंड द सन है. और ये कितना टाइम लेता है अर्थ एक अपना सर्कल, एक अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ऑलमोस्ट 1 ईयर. नाउ डियर स्टूडेंट, द नेक्स्ट वन थिंग अबाउट द ग्रिगोरियन कैलेंडर इज देयर आर 365 डेज इन अ ईयर. हमारे पास पूरे ईयर में 365 डेज हैं, बट इन अ लीप ईयर, जो लीप ईयर होता है जिसमें फरवरी का मंथ 29 डेज का हो जाता है. आफ्टर एवरी 4 ईयर देयर इज अ लीप ईयर. क्या होता है हमारे पास, लीप ईयर होता है. देन उस ईयर में क्या हो जाता है हमारे पास, ईयर में कितने डेज हो जाते हैं, 366. नाउ इन अ ग्रिगोरियन कैलेंडर वी हैव 12 मंथ्स. कितने, ग्रिगोरियन ईयर इज डिवाइडेड इनटू दी 12 मंथ. 12 मंथ्स में इसको डिवाइड किया हुआ है एंड द नेम ऑफ मंथ्स आर द जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, July, August, September, October, November and the December. Now dear student, the next one is the Gregorian calendar, Islamic calendar. After Gregorian calendar, the next one is the Islamic calendar. अब Islamic calendar किस पे बेस करता है, it is based on the movement of moon around the earth. It's a basic difference between the Gregorian and the Islamic calendar. ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पे बेस कर रहा है, बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड द इस्लामिक कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ मून. जो चांद की जो गर्दिश है किसके इर्द गिर्द, जमीन के इर्द गिर्द. लेकिन ग्रिगोरियन कैलेंडर किस पे बेस कर रहा है, जो जमीन जो गर्दिश कर रहा है किसके इर्द गिर्द, सन के इर्द गिर्द. नाउ डियर स्टूडेंट, जो चांद है, मून है, वो अपना सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है, 29.5 डे और 1 मंथ. और जो वो 1 मंथ कंप्लीट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इस्लामिक मंथ और लूनर मंथ. द नेम ऑफ मंथ्स इन द इस्लामिक कैलेंडर आर मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमजान, शवाल, जिलकद एंड जिल हज. नाउ डियर स्टूडेंट, लेट्स ओपन योर वर्ड बुक. Now dear student, it's a page number 43. The first one question is, what does the calendar tell us? हमें कैलेंडर क्या बताता है, कैलेंडर tell us about the days, week and the month of the year. कैलेंडर हमें क्या बताता है, days, weeks and the months, किसके, साल के. The next one is, how many calendar do we follow? हम कितने टाइप ऑफ कैलेंडर को फॉलो करते हैं, we follow the 2 types of calendar. The first one is the Gregorian and the second one is the Islamic. Now dear student, the next one question is the BCE stand for. BCE का मतलब क्या है, before the common era. What do the letter AD and BC stand for?
स्टूडेंट AD stand for the after Jesus Christ was born and the BC stand for the before Jesus Christ was born. Student, the next one question is, when did the first year of Hijrah start? Student, Hijrah means हिजरत, जिसे हम इस्लामिक टर्म में हिजरत कहते हैं कि हिजरत का साल। अब वो जो हिजरी का वर्ड है, वो हिजरी का जो साल है वो कब से शुरू हुआ था? वो कब शुरू हुआ था? When हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की थी, तो उस टाइम से हिजरत का महीना, हिजरी का महीना स्टार्ट हुआ था। स्टूडेंट, another important question is on page number 46. We have Islamic calendar. हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर तो है, but why do we can use the Gregorian calendar too? हम Gregorian calendar को क्यों यूज करते हैं? Because it provides the information about the revolution of earth around the sun. क्योंकि ये हमें क्या बताता है? अर्थ की रेवोल्यूशन को, जो अर्थ मूव कर रहा है अराउंड दी सन। So it is the chapter number 6 calendar. Now, so the dear student, the last one chapter is the lesson number 7, word religion. Students, religions का क्या मतलब होता है? मजहब, मजाहिब। इस दुनिया में डिफरेंट टाइप्स हैं मजाहिब, डिफरेंट लोग हैं और उन सब के क्या है? डिफरेंट रिलीजन से डिफरेंट मजहब है। So dear students, the first one thing is the people have the different faith and belief. जो लोग हैं उनकी क्या है? डिफरेंट फेथ है और डिफरेंट बिलीव, मतलब उनके मुख्तलिफ अकीदे हैं और मुख्तलिफ उनकी यकीन है, उनका ईमान क्या है? वो डिफरेंट चीजों पर है। अबाउट द गॉड एंड द ह्यूमन बीइंग, किसके मुतालिक? इंसानों के मुतालिक और खुदा के मुतालिक। These beliefs are called the religions. अब ये जो इंसानों का यकीन है मुख्तलिफ लोगों पर और मुख्तलिफ, मतलब उन्होंने जो अपने खुदा बनाए हुए, जिनकी वो पूजा करते हैं या वो जिनकी इबादत करते हैं, तो वो क्या है? वो क्या कहलाता है? These beliefs are called the religion. Now dear student, the first one religion in the Islam, the next one is the Christianity, then Judaism, Hinduism, Sikhism and the Buddhism. The first one is the Islam. इस्लाम क्या है? जो हमारा मजहब है इस्लाम। स्टूडेंट्स, मुस्लिम हैज 6 मेन बिलीव। मुसलमानों के कितने अकीदे हैं? 6 अकीदे। द फर्स्ट वन इज द बिलीव इन अल्लाह, अल्लाह पर ईमान। देन बिलीव इन एंजल्स, फरिश्तों पर ईमान। बिलीव इन द होली बुक, जो होली बुक है उस पर ईमान। बिलीव इन दी प्रॉफिट, रसूलों पर ईमान। बिलीव इन द डे ऑफ जजमेंट, अब जो आखिरत है आखिरत पर ईमान। एंड बिलीव इन द डेस्टिनी। स्टूडेंट, डेस्टिनी कहते हैं किस्मत, और अपनी किस्मत पर यकीन या उसके ऊपर ईमान के मीन्स, इसका मतलब क्या है कि हमारी जो किस्मत है, जो हमारे लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे या हमारी लाइफ में जो कुछ भी है, वो किसने सब जो है वो पहले से क्या है? वो तय हो चुका है और वो सब किसने? वो लिखा जा चुका है। मीन्स इसका मतलब ये है। द नेक्स्ट वन थिंग इज द फैक्ट्स अबाउट द इस्लाम। इस्लाम के मुतालिक जो फैक्ट्स है वो क्या है? हमारी होली बुक क्या है? कुरान पाक। प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? हम कहां पर इबादत करते हैं? मॉस्क में, मस्जिद में। होली प्लेस हमारी कौन सी है? मक्का एंड मदीना। मेजर फेस्टिवल्स हमारे कौन से वाले हैं? ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा। द नेक्स्ट वन इज फॉलो, जो इस्लाम को फॉलो करते हैं उनको क्या कहते हैं? मुस्लिम, मुसलमान। डियर स्टूडेंट, द अरेबिक वर्ड इस्लाम मीन्स द पीस। जो इस्लाम है उसका क्या मतलब है? पीस, एंड द मुस्लिम बिलीव्स ऑन अल्लाह, और जो मुस्लिम से मुसलमान वो किस पे बिलीव करते हैं? अल्लाह ताला पर। एंड देयर फेथ इज दी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज दी लास्ट प्रॉफिट। और हमारा क्या यकीन है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हैं। एंड इस्लाम इज दी वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन। और जो इस्लाम है वो दुनिया का सबसे तेज उभरने वाला और बड़ा जो है वो क्या है? दीन है। नेक्स्ट वन इज द क्रिश्चियनिटी। स्टूडेंट, क्रिश्चियनिटी जिसे हम कहते हैं ईसाइयत, या जो
ईसाइयत को मानते हैं उनको क्या कहते हैं? क्रिश्चियन कहते हैं। अब फैक्ट्स क्या है क्रिश्चियनिटी के अबाउट, कि उनकी जो होली बुक है उसका क्या नाम है? बाइबल। होली प्लेस जहां पर वो इबादत करते हैं उसको हम चर्च कहते हैं। उनकी होली प्लेसेस क्या है? जेरूसलम एंड दी बेथलेहम। मेजर फेस्टिवल उनके कौन से हैं? ईस्टर एंड दी क्रिसमस। उनके फॉलोअर्स को क्या कहा जाता है? क्रिश्चियन कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज दी जुडिज्म। डियर स्टूडेंट, जुडिज्म कौन होते हैं? जो लोग यहूदी, जिसे यहूदियत कहते हैं, उनको क्या कहते हैं? जुडिज्म। जुडिज्म इज द स्मॉल रिलीजियस ऑफ वर्ल्ड। ये क्या है? दुनिया का सबसे छोटा जो है वो रिलीजन है। एंड द नेक्स्ट वन थिंग इज दी फैक्ट्स अबाउट द जुडिज्म। जुडिज्म के जो मुतालिक जो फैक्ट्स है वो क्या है? उनकी होली बुक क्या है? तोरेत। उनकी प्लेस ऑफ वर्शिप क्या है? जहां पर वो इबादत करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? साइनागोग। उनकी होली प्लेस क्या है? जेरूसलम। उनके मेजर फेस्टिवल्स क्या है? योश हशना एंड योम किपुर। और इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग जुडिज्म को फॉलो करते हैं, उनको क्या कहते हैं? ज्यूज कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज द हिंदुइज्म। जो हिंदू होते हैं, हिंदुइज्म इज द रिलीजियस ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लिविंग इन द इंडिया एंड द नेपाल। जो लोग, ये जो हिंदुइज्म है, जो हिंदू है, वो मोस्टली कहाँ पे रहते हैं? वो इंडिया में रहते हैं एंड दी नेपाल। और कहाँ रहते हैं? नेपाल में। मेजर फैक्ट्स क्या है? इनकी होली बुक कौन सी है? विदास एंड दी उपनिषद। एंड दी इनकी होली वर्शिप प्लेस कौन सी है? जहां पे ये लोग अपनी इबादत करते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। जैसे मुसलमान जहां पर इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? मस्जिद। लेकिन जो हिंदू है जहां पे वो इबादत करते हैं उसको मंदिर कहा जाता है। इनकी होली प्लेस कौन सी है? रिवर गंगा विद मेनी अदर्स। इनके मेजर फेस्टिवल्स कौन से हैं? दिवाली। एंड जो लोग हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं उनको क्या कहा जाता है? हिंदूज। सिखिज्म। सिख कौन से होते हैं? द सिख्स फॉलो द टीचिंग ऑफ द गुरु नानक एंड द 9 अदर गुरु। जो ये गुरु नानक को फॉलो करते हैं और बहुत ज्यादा जो 9 अदर गुरुज हैं उनको फॉलो करते हैं। इनकी वर्शिप की प्लेस कौन सी वाली है? गुरुद्वारा। देन द लास्ट वन इज द बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कौन से होते हैं? जो बुतों की पूजा करते हैं। बुद्धिज्म बिगन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ द सिद्धार्था गुथामा। सिद्धार्था गुथामा जो है उनकी टीचिंग को ये फॉलो करते हैं। और ये जो जहां वर्शिप करते हैं उस जगह को क्या कहा जाता है? टेम्पल। Now dear student, let's open your workbook page number 53. Here we have some questions. The first one is the main beliefs of Muslim. Muslims के कितने beliefs हैं? Muslim have 5 beliefs. And the first one believes in Allah, believes in angels, believes in the holy book, believe in the prophet, believe in the destiny, and the believe in the day of judgment. Dear student, complete these facts files about the different religions. So you have to write the facts about the Islam and the Christianity and also about the Hinduism. The last one question is, do Muslim believe in the Bible and the Torah? Why? स्टूडेंट, क्या मुसलमानों का बिलीव है बाइबल एंड तौरात पे? स्टूडेंट्स, ये भी होली बुक्स है, मीन्स कि वो ये भी क्या है? ये आसमानी किताबें हैं, मीन्स कि इनको भी नाजल किया गया मुख्तलिफ जो थे प्रॉफिट्स उन पे। लेकिन जो मुस्लिम है इनका बिलीव किस में? ये सिर्फ कुरान पाक पे, बिकॉज उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की गई, वो जैसे एज इट इज जो है उस, क्योंकि कुरान पाक की जो हिफाजत है उसका जिम्मा किसने लिया है? अल्लाह ताला ने लिया। सो नो, बिकॉज द रिलीजियस स्कॉलर्स हैव मेड द मेनी चेंजेस इन द तोरा एंड द बाइबल अकॉर्डिंग टू देयर ऑन चॉइसेस। क्योंकि क्या है, ये वाली बुक्स है, इनमें स्कॉलर्स ने अपने हिसाब से क्या किए? चेंजिंग किया। सो मुसलमानों का इसमें बिलीव नहीं है। हमारा बिलीव सिर्फ कौन सी होली बुक पर है? जो हमारी होली बुक है कुरान पाक। Dear student, it was all about the revision lecture of grade 3 SST. Hope so you will learn all these concepts with the help of your parents, and your parents will guide you as a teacher. Take care of yourself. Allah Hafiz. Fi Amanillah.